పేరును చేంజ్ చేసుకొని బలరాం కిసాన్ గా మార్చుకున్నారు. అరే అంటే మనకు కూడా ఓకే. బలరాం కిసాన్ గారికి అంటే ఆయన డాక్టరేట్ ఏమైనా పిహెచ్డి కానీ ఏం రీసెర్చ్ అంటే ఏం చేయకుండానే గవర్నమెంట్ ఆయనకి డాక్టరేట్ ఇచ్చారు. ఆయనకు సార్కి 3 విషయాల్లో డాక్టరేట్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ ఆయన పిహెచ్డి చేయలేదు, ఇట్లా ఏం చేయలేదు. ఆయన కృషిని అబ్జర్వ్ చేశారు గవర్నమెంట్. అంటే 2-3 ఇయర్స్ అంటే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు, బలరాం కిసాన్ గారు ఏం చేస్తున్నారని ఆయనకు తెలియకుండానే వాళ్ళు ఆయన గురించి వాకప్ చేసి తర్వాత ఆయనకు డాక్టరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఇప్పుడు వారి అమూల్యమైన అంటే యాక్చువల్లీ మనం ఇప్పుడు బనానా కొరకనే కూర్చున్నాం ఇక్కడ ఫార్మర్స్ అందరము. తర్వాత చేద్దాం ఆఫ్టర్ కూర్చుంటాం. అంటే మనం ఇప్పుడు ఎంతో అందరం అనుకుంటాం మా దగ్గర 35 టన్నులు, మన దగ్గర 35 కేజీల అరటి పండిస్తున్నాము, 25 కేజీలు పండిస్తున్నాము, మనం మంచి చాలా గ్రేట్గా బాగా చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాము. కాకపోతే మనకు తెలియని చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ విషయాల్ని हमें जो मालूम नहीं है साहब, हमको जो मालूम नहीं है आपसे सीखना चाह रहे. हम आज किसान पाठशाला का शिष्य बन रहे हैं आज से. yes. अभी ये कंटिन्यू हो जाएगा. आपको थोड़ा तकलीफ भी देंगे हम लोग, आपको सहना पड़ेगा. जरूर जरूर जरूर. ओके सर. ఇంకోట ఓకే. ఏయో ప్రదీప్ గారు కొద్దిగా వేదికను అలంకరిస్తే బాగుంటుంది. రండి రండి. అరే రండి సార్. అరే అయ్యి రండి సార్. అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ సార్. ఇది ఇక్కడ ఒకటి పెట్టండి. ఇంకోటి ఏంటంటే కొద్దిగా మనం అందరం కూడా ఫోన్లు సైలెంట్గా చేసి, అంటే సార్ చెప్పేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనం ఏది ఒక్కటి మిస్ అయినా కూడా మళ్ళీ మనకు వేరేది దొరకదు ఇక. అందుకొరకని చాలా జాగ్రత్తగా విని అందరం కూడా ఇప్పుడు ఇది ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మన దగ్గర అరటి ఏరియా తక్కువ ఉండి మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం. బయట నుంచి ట్రేడర్స్ అన్ని రప్పించలేకపోతున్నాం. మనకి ఏరియా ఎక్కువైతే రావడానికి అందరు రెడీ ఉన్నారు బయట నుంచి. ఇప్పుడు నాందేడ్ నుంచి కానీ సౌదా నుంచి కానీ చాలా మేము వెళ్ళాం, అక్కడ నుంచి కూడా రెడీ ఉన్నారు రావడానికి. కాకపోతే మనం ఏంటంటే మన ఏరియా తక్కువ ఉంది. వాళ్ళు వచ్చారంటే అక్కడ సౌదాలో డైలీ 500 లోడ్లు ట్రక్కులు నింపుతున్నారు. డైలీ 500 ట్రక్స్ ఆ ఏరియా టోటల్ మొత్తం. అంటే 20 టన్నులు 22 టన్నుల ట్రక్స్ 500 ట్రక్స్ నిండుతున్నాయి ఆ ఏరియాలో. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా సప్లై అవుతుంది. మన దగ్గర ఏమైందంటే వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చిందనుకోండి, అంటే ట్రేడర్ వ్యాపారి, ఆయనకు మనం కనీసం రెగ్యులర్గా డైలీ ఒక లోడ్ కూడా ఇవ్వలేకపోతాం. అందుకొరకే ఇది మీటింగ్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేసినా, మనకు కరెక్ట్ రేట్ కూడా దొరకట్లేదు మనకి. ఇక్కడ లోకల్ ట్రేడర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇప్పుడు అక్కడ 15 రూపాయలు నడుస్తుంది, మనకు 8 రూపాయలు ఇవ్వడానికి కూడా రెడీ లేరు. వాళ్ళు 6 రూపాయలు, ఈరోజు 6 రూపాయలు ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సంక్షోభం నుంచి బయటపడాలి, మనం ఎట్లా చేయాలనే ఆలోచనతోటే సార్ తోటి ఇంటరాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకు అంటే పంట కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనకు బాగా తెలుసు అనుకుంటున్నాం, కానీ మనం చాలా మనకు తెలిసినంత 5% ఉంది. 95% ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది. అందుకొరకు కిసాన్ పాఠశాల గురించి సార్ గురుగారు వచ్చారు. ఆయన ఏం చెప్తారో ఆయన అమూల్యమైన సందేశము, ప్లస్ అది విని వదలడమే కాకుండా అందరం కూడా ప్రాక్టీసెస్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసి మంచి ఈల్డ్ తెచ్చి, మనం ఇప్పుడు కిసాన్ G9 మొక్క అంటే ఇలా ఉంది అని మనం అంటే యాక్చువల్లీ మన జహీరాబాద్ లోనే టాప్ గా ఉండాలి G9 కిసాన్ G9 వెరైటీ, G9+ వెరైటీ. దాని కొరకు మనం కృషి చేయాలి. సార్ కూడా ఎప్పుడైనా అక్కడ ఎవరైనా ఫార్మర్స్ పోతే जहीराबाद में जाओ, आप हमारा खेत देखो, हमारा प्लांट देखो बोल के बोलो. ऐसे करेंगे सब, हमारा वादा है. बहुत अच्छा. ओके साहब, आपका संदेश कुछ. नमस्कारम. नमस्कारम सर. किसान पाठशाला के सदस्य बनना अपने आप में शायद आज आपको अच्छा लगेगा. आपके यहाँ से मेरा दूरी शायद 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर है, बड़वानी मध्य प्रदेश का. और मैं पिछले 1 सप्ताह से साउथ इंडिया के टूर पे हूँ.
आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना तीनों राज्यों में मैं 2-2 दिन अभी मैंने समय बिताया है और काफ़ी फार्मरों से मिला हूँ मैं। इसके पहले भी मैं आया था, बट ये जो मेरा साप्ताहिक टूर था ये ओनली फील्ड और फार्मर था। हम पहले भी आकर यहाँ घूम रहे हैं, बनाना परचेस कर रहे हैं, बनाना प्लांट सप्लाई कर रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, लेकिन वो 1-on-1 इंटरेक्शन था। अभी मुझे साउथ इंडिया ऐसा लग रहा है कि सीखने को तैयार हो रहा है। ये जो सोच है आपने शुरुआत करी है कि हाँ हम सीख सकते हैं, और जिसकी पहल राम जी और रेड्डी साहब दोनों ब्रदर्स और बाकी टीम ने करी है, इसको मैं धन्यवाद करूँगा। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हम किसान पाठशाला के साथ सीखने सिखाने में आगे कैसे बढ़े। ओके, परसों हम कहीं और थे, कल हम कहीं और थे, बट आप इंडिविजुअल 1-on-1 हैं। हम एफपीओ के साथ में भी आगे बढ़ रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम सिंगल आगे बढ़ेंगे ना तो संख्या कम होगी और व्यापार से हम पैसा कम ला पाएंगे। इकट्ठा होकर क्लस्टर बन करके, एकजुट होकर के एक संख्या बनकर आगे बढ़ेंगे तो शायद हम मार्केट से पैसा ज्यादा ला पाएंगे, जो मेरा अभी तक का अनुभव है। जैसे आपने बताया सौदा 500 गाड़ी पर डे बन रहा है तो वहां व्यापारी ज्यादा है। आपके यहां पर 10 दिन में 5 गाड़ी बन रहा होगा तो यहां पर व्यापारी कम है। फार्मर को थोड़ा सा चेंज समझ में आता है कि हमने सबने केला लगा लिया तो बेचेंगे कहां, बट होता उल्टा है। व्यापारी को एक ही जगह ज्यादा माल चाहिए तो ज्यादा व्यापारी आते हैं, एक ही जगह कम केला या प्रोडक्शन मिला उनको तो कम व्यापारी आते हैं। ये रियलिटी है। हम बात करेंगे आज बनाना और बनाना या और कुछ आपका पॉइंट है तो वो भी बताइए, तो मैं उसको समावेश में लूं। केले के अलावा और कोई भी चर्चा हमें करनी है? पपीता की, ठीक है। केला पपीता एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को लगभग सिमिलर हम कहीं कहीं पॉइंट को टच करेंगे। मेरी बात कुछ भी शुरुआत करूं इसके पहले मैंने आपका क्षेत्र तो जान रखा है बहुत अच्छा टेक किया है। एस को किसने लिखा? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसान पाठशाला कैसे आया और आपके बीच में अभी मैं क्यों खड़ा हूं, ये थोड़ा सा एक प्रश्न आपको आंसर मिलना चाहिए तो हम आगे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। उसके पहले एक बात मैं बतला दूं कि अगर आप मेरे साथ 3 घंटा तन और मन और हृदय से रहेंगे साथ में, तो आज से शायद आपका 3 आवर 75% फार्मिंग का खर्चा कम होगा और 75% उत्पादन बढ़ सकता है। शर्त एक ही है, तन मन और हृदय से साथ में यहीं रहना पड़ेगा। हेलो हेलो, उसका वॉल्यूम या बास ट्रबल को देखो, पीछे आ रहा है? सही आवाज आ रहा है? हिंदी समझ में आ रहा है? ओके, आप जरा नजदीक रखूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? कितनी देर मेरे साथ बैठना है? 3 घंटे। 3 घंटा। खर्चे 75% कम हो जाएंगे। मैं राइटिंग नीचे लास्ट में दे दूंगा आपके पास जो डायरिया है। और 75% उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है 3 घंटे दिए। 2 घंटे देंगे तो कितना होगा? 50%। और 1 घंटा देंगे तो 25। समझदार है सभी लोग। हाँ, डिसीजन आप लोगों को करना है। राम साहब ने जो बुलाया है ना, तो कुछ सोचकर आप लोगों को बुलाया है। सिलेक्टेड लोगों से बात करने की कोशिश करी है आज हमने कि जहीराबाद में हम कुछ फार्मिंग का, किसान पाठशाला का एक बीज रोपण करेंगे। शायद
मैं कुछ आपसे सीखूंगा, जो मैं अभी फिर जो अभी हम चर्चा करेंगे उसमें भी शायद हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सीखने के लिए बुलाया है, मध्य प्रदेश से हम भी सीखने के लिए आए हैं। आइए आइए। पेन और पैड किसी विशेष कारण से दिए हैं आपको। जो ये पैसा बचेगा ना, जितना आप पेन पैड पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना, वरना दोपहर बाद खाना खाने के बाद हम जब रील देखेंगे तो आज की मेरी पाठशाला खत्म हो जाएगी। जो हम लिख के ले जाएंगे वो हमारा पैसा बचाएगा, ये निश्चित है। और एक छोटा सा प्रोग्राम, अगर ये YouTube पर आप देखेंगे ना, किसान पाठशाला फार्मर स्कूल, तो आज की आपकी पाठशाला जो है ये टोटल रिकॉर्डिंग होकर उस पर आएगी। तो YouTube चैनल पर जिसने किसान पाठशाला नहीं देखा हो वो उसे टाइप करके सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज अगर कोई मिस होगा आपसे तो ये कल शाम तक उस पर पूरा का पूरा एज इट इज आने वाला है। क्या होता है जब कोई मित्र इनवाइट करता है कि आज खेती के बारे में कुछ चर्चा होगी, जैसे राम जी ने इनवाइट किया होगा, रेड्डी साहब ने इनवाइट किया होगा, तो काफी मित्रों ने सोचा होगा यार कोई प्रोडक्ट बेचने वाला आएगा, आज कुछ एक सिखाएगा कि ये कैसे काम करता है, देखेंगे बाद में जाएंगे, थोड़ा सा काम है, खेत में भी काम है। किसान पाठशाला शायद आप लोगों का पहली बार हो रहा है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ना। तो आज आपको समझ में आएगा कि मेरे शायद 4 मित्रों को और मैंने बुला लेना था, वो 3 घंटे बाद समझ में आएगा। इसलिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो आपके साथ नहीं आ पाए हैं उनको ये लिंक शेयर करेंगे आप, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। हमने 2006 में सीखना चालू किया, 2002 से मैंने खेती करना चालू किया, तो यह समझ में आया कि सीखना पड़ेगा। 2010 तक सीखना चालू किया पूरे भारत में, और भारत से बाहर अच्छे वक्ता जो फार्मिंग के थे उनको बुलाया, सामने बैठे पेन पैड पर लिखा, सीखा, समझा। फिर समझ में आया कि जिसको भी मंच दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है। तो 2010 से बुलाना बंद किया, हमने आगे आकर के मंच संभालना चालू किया। अब हम किसान पाठशाला में उनके साथ में जाते हैं जो कोई प्रोडक्ट की बात ना करें, एक्चुअल में फार्मिंग में चाहिए क्या उसकी बात करेंगे हम। यह छोटी सी एक हल्की सी परिधि ये लाइन है जिसको हमें और आपको ब्रेक करना है। एक मैंने राम जी को कल लाइन बतलाई थी, वह आपके लिए भी समझने की बात है। किसान की समस्या का हल है। इसका मतलब क्या है? किसान समस्याओं से ग्रसित है। आप लोगों में से कितने फार्मर ऐसे हैं जो अपनी खेती से संतुष्ट हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ, किसी को 2 पैसा गड़बड़ी लग रही है कि मैं जो कर रहा हूं उससे उतना अच्छा आ नहीं रहा है, किसी को 10 पैसा लग रहा है, किसी को 50 पैसा लग रहा होगा कि इस साल मैंने 2 लाख रुपए खेत में लगा दिए पर रिटर्न 50,000 ही है। समय जोड़ते ही नहीं है हम। हमारी बाइक को लेकर हम खेत में गए, उसका पेट्रोल जोड़ते ही नहीं है। किसी फार्मर ने जोड़ा है? नहीं। कितनी बार खेत पे गए, कितनी बार अपने परिवार वालों को खड़ा करके उनको काम बता के आए, उसका मेहनताना जोड़ा है? नहीं, हमारा खुद का भी नहीं जोड़ते। फार्मिंग को हमने खेती किसानी माना है, और फटी बनियान पहन करके फोटोएं हमने मार्केट में देखी है। गमछा, फटी बनियान, फटा लुंगी, ये किसान का पोशाक। और हमारी मनस्थिति भी वैसे ही हो गई कि किसान मतलब ऐसे ही जिएगा। बड़वानी मध्य प्रदेश इंदौर संभाग में किसानों के बीच में केले की खेती करके सबसे पहला जेगवार ऐप पे 1.25 करोड़ का मेरे पास आया है। फटी बनियान को हमें डिलीट करवाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?
ये मैंने लहरी का एक लाइन पढ़ा, किसान की समस्या का हल है, इसमें निकल के आता है कि किसान ग्रसित है समस्याओं से। पानी प्रॉब्लम हो सकती है, खाद की प्रॉब्लम हो सकती है, सीड की प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ अच्छा रहा तो क्लाइमेट की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत अच्छा उत्पादन लेके घर पे आ गए तो बिक्री की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बेचे कहां, किसको, कितने में। सब अच्छा हुआ तो पड़ोसी का 14 रुपए में बिक गया, मेरा 12 में क्यों बिका, वो एक अलग प्रॉब्लम है आखिरी में। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। इसी को पैरेलल दूसरी लाइन आती है, या समस्या ही किसान की समस्या का हल है, या हल ही किसान की समस्या है। जो हल देने आ रहे हैं, ये जो हल बताने आ रहे हैं ना, हल ही किसान की समस्या है। दूसरी लाइन समझ में आ रही है? पहली तो हुई किसान की समस्या का हल है, और दूसरी लाइन में या हल ही किसान की समस्या है। सेकेंड लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। ये हमने समझा 2006 में, हल ही किसान की समस्या है। अभी मैं ये बोर्ड को इरेज करके आपकी समस्याएं पूछूंगा, और अगर मेरे पास यहां 10 प्रोडक्ट रखे हैं और मैं आपकी समस्याओं का आंसर देना चालू करूंगा, तो किसके इर्द गिर्द आएगा? उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द आपकी समस्या का आंसर आएगा। और इस टेबल पे कोई प्रोडक्ट नहीं है जी, आइए। हाँ है, आगे है, चेयर है। अगर इस टेबल पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैं किसके इर्द गिर्द बात करूंगा? एक्चुअल में फार्मिंग के इर्द गिर्द बात करूंगा। तो जो नेक्स्ट लाइन है ना, या हल ही किसान की समस्या है, तो जितने आंसर हमारे पास आ रहे हैं उसको हमें थोड़ा कुरेदना पड़ेगा कि ये किस द्वार से आ रहे हैं, किस रास्ते से हमारे पास उत्तर आ रहे हैं। 2006 में हमने ये समझा तो हमने सीखना चालू किया। ये एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट है लहरी, जो दैनिक भास्कर में कार्टून बनाते हैं न्यूज़पेपर में। उनका एक बहुत बड़ा लेख बहुत पब्लिक हुआ, वहां से हमने समझना चालू किया किसान की समस्या का हल है या हल ही किसान की समस्या है। बहुत डीप लाइनें हैं दोनों। हमारे खेत में इल्ली हो गई, एक्स दवाई ले आओ, वाई दवाई ले आओ, जेड दवाई ले आओ, नाम कुछ भी हो सकता है। हमारे खेत में केले में फंगस आ गई है, एक्स फफूंदी नाशक, वाई फफूंदी नाशक, जेड फफूंदी नाशक, कुछ भी हो सकता है। फफूंदी नाशक है, हमने दिया, फिर समस्या ठीक हुई, अगली बार बढ़ के आई, अगली बार ज्यादा देना है, तीसरी बार थोड़ा फिर बढ़ के आया, अब और ज्यादा देना है, चौथी बार फसल बदलना है, ये तो आती रहेगी। ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है सर। यस, हल ही समस्या है। पहली बार फफूंदी नाशक हमने जो डाला, तो जो फफूंदी नाशक डाला, क्या उसने शत्रु फंगस को ही मारा या मित्र को भी मार दिया? मित्रों को भी मार दिया। हमें जाना पड़ेगा रिवर्स, कि जहां से हमने समस्या का निवारण शुरुआत करी। इसका मतलब यह नहीं है कि फफूंदी नाशक डालना नहीं है, पौधे को वैसे ही खराब होने देना है। मैं जस्ट देखने की दृष्टि की बात कर रहा हूं पहले, कि हम हमारी फील्ड को किस नजरिए से देखना चालू करें। अगर हमने देखना चालू किया तत्कालिक समस्या का निवारण, तो बीमारी को हम बढ़ाएंगे। और हमने देखना चालू किया कि ये डिसीज, ये फंगल, ये दिक्कत आई है, ये अगली बार आए ना, और ये जल्दी से रिकवर कैसे होगी, तो हम डीएनए पर काम करेंगे कि आई कहां से, इसका शोधन करना चाहिए, और पीछे जाएं और पीछे जाएं और पीछे जाएं, वाई वाई वाई, क्यों 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 आई, क्यों आई, कहां से आई। तो देखने की दृष्टि को थोड़ा सा चेंज करने के मोड में लेके आएंगे, तो हम उन दिशाओं में जाएंगे जहां से हमें रिजल्ट मिलता है। मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? लैंग्वेज, तरीका मैं समझ रहे सब। हाँ, समझते हैं साहब? ओके, बराबर है। 3 घंटे फिर कौन कौन बैठने वाला है?
75%। थैंक यू। तो अपने जो जी को कहिएगा फ़ोन साहब को कि 3 घंटे आपको हम आज रेस्ट देंगे, और डायरी में मेन बातें जो समझ में आए कि इसको हम फॉलो करेंगे उसको हमें लिखना है, और जो बात चलते चलते प्रश्न समझ में आए कि हमें ये प्रश्न पूछना है, तो लास्ट में थोड़ा सा समय हम क्वेश्चन आंसर का लेंगे। जो पूरा सेशन होने में आपको समझ में नहीं आया होगा, या कुछ बाउंसर गया होगा, या थोड़ा समझ में आया थोड़ा पकड़ने में आया, उसको लिखना है। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम लेंगे, फिर घर जाएंगे, बट बीच में नहीं, लास्ट में। हो सकता है जो प्रश्न बात चलते चलते बन रहा हो वो बीच में उसका आंसर आ जाए, तो आप उस प्रश्न को डिलीट भी कर देंगे, आंसर मिल जाएगा तो, या जिसका नहीं मिला लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, हम बात करने वाले हैं आज बनाना की। केला आप सभी फार्मर लगा रहे हैं या कोई नए फार्मर भी हैं? जो नया फार्मर जिसने नहीं लगा रखा, 1 2 3 4 5 6 जो अब लगाएंगे, और जिनके बाकी जो हैं वो ऑलरेडी बनाना फार्मिंग कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम आप लोगों को पता है कि केला खेती कैसे होती है। इसका थोड़ा सा इतिहास में बतलाऊंगा, जो मैंने चालू किया, शायद उससे आप रिलेट करोगे। मेरा तरीका तो आपको समझ में आया होगा ना। डायरेक्ट फंगस आया तो फंगीसाइड नहीं डालूंगा, मैं पीछे जाऊंगा, क्यों आया, कहां से आया, इसलिए बार बार कहानियां बतलाऊंगा, है ना। तो बनाना फार्मिंग जब मैंने चालू किया, तो किसान पाठशाला का इतिहास में अगर बतलाऊं तो 2010 में मैंने बनाना लगाया, तो 2009 में मैंने खोजबीन चालू करी केले की खेती कैसे करना चाहिए। हाँ, शायद आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। तो मैंने क्या किया, मैं जहां रहता हूं मध्य प्रदेश में, एमपी में, मेरे आसपास मैंने केला देखा कैसे होता है। फिर मेरे नजदीक है महाराष्ट्र, ये कॉर्नर महाराष्ट्र का है, ये कॉर्नर गुजरात का है, जीजे एमएच, और ये कॉर्नर राजस्थान का है, आरजे, ये कॉर्नर यूपी का है। तो यहां पर खूब अच्छे से केला होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। मेरे जस्ट गांव से 110 किलोमीटर महाराष्ट्र में एक गांव है ब्राह्मणपुरी, बहुत फेमस गांव है, जहां का हर फार्मर केला लगाता है। 2009 में मैंने जब केले को समझा, देखा, तो मुझे ऐसा लगा मैंने केले की खेती करना चाहिए। उसका पहला कारण था केले की खेती क्यों करना चाहिए। मेरे गांव में एक भी मकान, ये सामने मकान जो भैया के दिख रहे हैं ना, रेड्डी ब्रदर्स के, वो मकान के चारों तरफ आप घूमेंगे तो कैसा दिखेगा, घर, उसके बाद बहुत सारा स्पेस, फिर बाउंड्री, पीछे खिड़कियों पे पंखे लगे हुए, मकान के बाहर खिड़कियों पे पंखे लगे हुए हैं ना, रेड्डी ब्रदर्स के मकान पे बनाना कर रहे हैं 30 साल से। ऐसा ही मुझे ब्राह्मणपुरी में, उस गांव में घूमकर देखने को मिला। बड़े मकान, घर छोटा, प्रांगण बड़ा, 5-6 गाड़ियां, एक जीप थार जो खेत में जाने के लिए, एक छोटी गाड़ी जो मार्केट करने के लिए, एक लग्जरी गाड़ी जब शादी ब्याह हो तब फैमिली को ले जाने के लिए, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। ये मुझे ब्राह्मणपुरी में हर घर में मिली, मैक्सिमम घर में। हम जब केला देखने गए तो केले को तो कम देख पाए, उस गांव में से निकले तो गांव को ज्यादा देखा कि हर खिड़की के बाहर पंखा है। तलुन बड़वानी में मेरे घर में घर के अंदर पंखा है, ब्राह्मणपुरी में खिड़की के बाहर पंखा है, वो बाहर हवा फेंक रहा है। हमको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। खेत विजिट करके जिन लोगों ने हमें फार्मिंग दिखाया वो फिर घर पे लेके गए, पानी चाय पिया। तो जैसे अंदर गए, क्लाइमेट चेंज, खेत में हम घूम रहे थे, 40 डिग्री 42 डिग्री 44 डिग्री तक वहां रहता है। घर के अंदर गए 25 डिग्री, ऐसा लगा शिमला कुल्लू मनाली में आ गए। फिर हमने पूछा उनसे चाय पानी पीते पीते, बाहर पंखे किस चीज के हैं। उन्होंने फिर समझाया हमें कि इसको एसी बोलते हैं, ये घर का क्लाइमेट कंट्रोल करता है।
और वातानुकूलित मौसम बनाता है घर के अंदर। तो फिर हमने समझा कि केले की खेती इसलिए जरूरी है कि हमें डे टू डे के जो काम काज में पैसों की जरूरत लगती है वो केवल केला पूरा कर सकता है, उसमें लॉटरी सिस्टम है। उस गांव में 3 साल केला रखते थे, 1 साल पपाया, 3 साल केला, 1 साल पपाया, ऐसे अल्टरनेट किया। ये ना बेटा कुछ खटिया भी उठा ले और वहां की चेयर भी उठा के ले आ इधर। ब्राह्मणपुरी में ये देखा और मेरे गांव को देखा मैंने। तो मेरे गांव में सीमेंट तो था ही नहीं, मिट्टी के मकान, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। बट दिमाग में लालच थी कि मेरे यहाँ खिड़की के बाहर पंखा कब लगेगा, मेरे यहाँ 4 व्हीलर कब आएगी। तो केले के किसानों से मिलने से, उनसे समझने पे ये पता चला कि 3 साल बनाना, 1 साल पपाया, जो बनाना की फील्ड है, और पपाया वहां लगाया तो उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। कम खाद में पपाया बहुत अच्छी पकती है, वायरस कम आता है। और पपाया या मिर्च के खेत में आपने बनाना लगाया तो उसमें बीमारियां कम आती, वो अच्छा चलता है। ये एक, अगर आप लोग भी साइकिल बनाओ तो पपाया बनाना कर सकते हैं। जब हमने विजिट किया तो ये ऑरा फिक्स हुआ कि केले में पैसा है। दूसरा ऑरा फिक्स हुआ कि केले में लेबर कम है। हमें मिर्च, टमाटर, भिंडी, खीरा करेंगे तो डे टू डे के लेबर ज्यादा लगेंगे। मोटा मोटा सिनारियो समझ में आया, केले की खेती करना है। जैसे आजकल हम आप किसानों को समझ में आता है कि 22 रुपए किलो केला बिक रहा है, पेपर पे हमने पढ़ लिया है तो हमें केला लगाना चाहिए, ऐसा हम स्टार्ट हो जाते हैं। बट जब केला लगाते हैं पता चलता है कि 13 रुपए किलो हमारे खेत से बिक रहा है। ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ हो रहा है? होता है सब, हर एक क्रॉप में, सब एक ही क्रॉप में। न्यूज देखते हैं तो 22 रुपए किलो, खेत में 12 रुपए किलो बिकता है। तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि एक्चुअल 12 ही बिकेगा, हमें खर्चे कम करना पड़ेंगे और 12 से ज्यादा बेचने की कोशिश में लगना पड़ेगा। इसके आगे बढ़ता हूं। जब मैंने R&D किया तो महाराष्ट्र में देखा, फिर भारत के किसान केला कैसे लगा रहे हैं 2009 में मैंने समझा। तो 5x5, 2014 आते तक हमने कुछ बातें करी तो 5x6, इसके साथ में बहुत सारे थे 4.5x4। ये केले के ग्राफ हैं। 1 एकड़ में इसमें केला कितना लगता है? 1750, 1450, 2000, 1950 के लगभग। ये जब ग्राफ हम लगाते हैं तो इतनी संख्या पौधे की लगती है। 1 साल केला बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो केले के कंपनी पौधा बेचती है वो 1 साल तक, 6 महीने तक उंगली पकड़ के चलती है। जैसे ही फ्लावरिंग आया उसके बाद गायब, पौधा बिक गया। उसके साथ में कुछ 2 कंपनियां फर्टिलाइजर देने वाली है, जो फ्लावरिंग आने तक फर्टिलाइजर हमें डलवाती रहेगी। उसके बाद में फ्लावरिंग आ गया, उसके बाद आप अपने आप पर निर्भर हैं। अब आपको बेचना ही है ना, तो आपको भी उतनी जरूरत नहीं है। शुरुआत में हमें बहुत उमंग रहती है कि अच्छा बनाना है, तो हम भी बार बार एग्रोनॉमिस्ट को बुलाते हैं, मैंने केला लगाया है, आकर देख लो क्या करना है। तो 7 महीने तक सब हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। तो फर्स्ट क्रॉप बहुत अच्छी आएगी, पहली। दूसरी मालूम नहीं पड़ेगी कैसे लेना है। दूसरी, पहली से रेट कम। भारत की जो फार्मिंग मैंने 2010 में देखी, 9 में देखी। तीसरी, निकाल कर अगली फसल लगाना है। थर्ड क्रॉप आप लोग ले रहे हैं क्या? शायद आप लोग भी इसी विधा से गुजर रहे हैं मैक्सिमम। जो मैंने 2009 में सीखा कि भारत में केला कैसे हो रहा है। अभी 2025 है, तेलंगाना में, जहीराबाद में भी लगभग इस तरह से फार्मिंग हो रही है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने और क्या देखा, गुजरात में देसाई ग्रुप 110 एकड़ का खेती, एक ही पॉकेट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना आपने? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां से 40 किलोमीटर पे चंदवाड़ा करके गांव है, सनखेड़ा के पास। देसाई ग्रुप ने 2010 में जमीन रेडी करी,
2010 में प्लांटेशन लगाया। अभी कंपैरिजन देखना, मैंने 2009 में ये रीड किया तो मैं आज आपके सामने केले पे बात कर रहा हूं। 2009 का इतिहास आपको क्यों बता रहा हूं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। 2010 में मैंने साइट विजिट किया, 1 एकड़ पे 700 प्लांट। कितने? 700। ये कंपनी है और ये फार्मर है। अभी ये फार्मर इस तरह का खेती कर रहे हैं, तब भी इनके यहां खिड़की के बाहर पंखा लगा हुआ है। ये इसमें भी खुश हैं, BMW मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट और बेहतर क्या हो सकता है वो मैंने देखना चालू किया कि और बेहतर क्या हो सकता है। तो मैंने देसाई ग्रुप को रीड किया। देसाई ग्रुप भारत के पहले बड़े केले खरीदार हैं, लार्ज स्केल पे बनाना परचेसर है, जो लोकल डोमेस्टिक में केला बेचते हैं, भारत के बाहर भी केला बेचते हैं और लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहां जहीराबाद में सेकेंड रेटून बिकता नहीं, कम में बिकता है। देसाई ग्रुप की स्टोरी मैंने देखी, 2010 में विजिट किया, 2011 में मैंने विजिट किया। 2010 में प्लांटेशन कर रहे थे, 2011 में मैंने क्या देखा था, फल कट रहा है। हार्वेस्टिंग के टाइम हम गए, जब प्लांटेशन होता है तो देखना पड़ता है ना माल कैसे निकलेगा, या बड़ी बड़ी बातें केवल कर रहे हैं। तो जिस दिन माल कट रहा था उस दिन हम फिर फील्ड पे गए। ये फोटो मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाओगे बलराम किसान पे तो आपको मिलेगा, जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। माल कटने वाले टाइम पर हम गए तो माल कट रहा है, उसके पास में एक पौधा खड़ा है जिसकी ये हाइट है, और उसके पास में फिर एक बच्चा है। – 2010 में प्लांटेशन किया, 11 में माल की कटिंग चालू है, फल कट के एक्सपोर्ट हो रहा है। बट फील्ड कैसे दिख रही है? अभी प्लांट लगाए कितने? 700। तो 700 कौन से हैं? जिसका माल कट रहा है। पीछे समझ में आ रहा है? फिर 700 कौन से हैं जो साइड में खड़े हैं? फिर 700 कौन से हैं जो नया बेबी है? अभी कितना प्लांट है एक भिर्रे में? 3 और पूरे खेत में 2100। यहां पर मार्केट से 1700 पौधे खरीद कर हम खेती कर रहे हैं, यहां पर मार्केट से 700 पौधे खरीदे हैं। नमस्ते जी। यहां पर मार्केट से 700 पौधे खरीदे हैं, हमारे खेत में कितने हैं? 2100। मतलब प्लांट प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हम खुद ही। अगर इस विधि से गए, कंपैरिजन मैंने जो देखा, उसके बाद में अगली हार्वेस्टिंग पहली आई 10 महीने में, फर्स्ट हार्वेस्टिंग 10 महीने, F1 सेकेंड हार्वेस्टिंग फिर 8 महीने में, और ये निकल के आएगी वापस 8 महीने में। 3 हार्वेस्टिंग कितने महीने में आया? 10, 8, 18 और 8 26 महीने, 26 महीने, लगभग 2 साल। हाँ, 24 महीने का 2 साल हुआ ना, तो 26 महीने लगभग 2 साल। ये प्रोग्राम मैंने देखा तो दिमाग थोड़ा हिलने लगा, कुछ तो ज्यादा देख रहा हूं या अपच हो रहा था, क्योंकि यहां भी किसान खुश है ना। खिड़की के बाहर पंखा तो यहां मेंटेन कर ही रहा है। ये रियलिटी है, ब्राह्मणपुरी आज भी गांव है। तो ये क्या मेंटेन कर रहा होगा? मल्टी मिलियन, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, इससे भी आगे बड़े खिलाड़ी हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, आप लोग देख सकते हो। इसके आगे जाओगे, DOLE, डोल बनाना, वर्ल्ड के बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूं। आप एंट्री करो, जो मैं नाम बता रहा हूं इसको घर जाकर फ्री टाइम में सर्च करो, गूगल पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कुछ डेटा मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं हम उसके जैसा करें, जरूरी है हम सीख लें और हमारे क्षेत्र में जो आवश्यकता है उन चीजों को एडॉप्ट कर लें, तो पैसे बच जाएंगे, उत्पादन बढ़ सकता है। डोल बनाना क्या करता है?
10,000 एकड़ का प्लॉट, 25,000 एकड़ का प्लॉट गवर्नमेंट से टापू परचेस करते हैं या लीज रेंट पे लेते हैं। फिलीपाइंस में, इंडोनेशिया में इनकी फार्मिंग है, पूरा का पूरा टापू ले लेते हैं। तो मैंने देखा कि डोल बनाना खेती कैसे कर रहे हैं। तो डोल बनाना के जो दादा ने केले का पौधा लगाया था, उसी पौधे के भिर्रे से उनके बेटे ने भी केला काटकर मार्केट को बेचा, और सेकंड थर्ड जनरेशन भी अभी उसी पौधे से, पौधा चेंज नहीं किया। आज खड़े हैं डोल बनाना के प्लाट, पोता भी उसी खेत से माल काट करके मार्केट में बेच रहा है। सिगाटोको आती है, कवर करते हैं, बंची टॉप आता है, कवर करते हैं, सॉइल बोर्न डिसीज आती है, कवर करते हैं, पनामा वेल्ट आती है, कवर करते हैं, बट फील्ड नहीं चेंज करी। 3 जनरेशन, एक बार पौधा लगाया, माल केवल वहीं इंडोनेशिया, जकार्ता या आपका फिलीपाइंस में नहीं बेच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं। लंबी चाल का केला बनाते हैं। अब छोटी छोटी बातें पकड़ में आए समझना। व्यापारी जब पूछता है कि आपका केला लंबी चाल का नहीं है, मतलब आज काटा तो जम्मू कश्मीर जाने में 7 दिन लगेगा, रेट ज्यादा जम्मू कश्मीर से आएगा, तो आपके केले की क्वालिटी होनी चाहिए कि आज माल कटा तो 7 दिन का ट्रेवल कर ले, मतलब लंबी चाल का केला बने। वैसे ही आज हमने माल काटा तो दुबई भेजना है, 18 से 20 दिन का ट्रांजिट पीरियड है। माल कटा, राइपनिंग चेंबर में गया, प्री कूलिंग हुआ, फिर रेफ्रिजरेटर चेंबर में गया, वो कंटेनर जा रहा है, बंदरगाह पे गया, वेसल आई, फिर वो 10 दिन का ट्रेवल किया। अगर इंडिया के बाहर भेजना है तो कम से कम 15 से 20 दिन। तो प्रश्न क्या है कि जो मैंने ये केले की फील्ड लगाई है, इसमें जो मेरा फल आएगा ये आज काटने के बाद 15 दिन तक वैसा ही रहेगा क्या? तो एक्सपोर्टर लेके जाएगा। ये जो केले की फील्ड है, ये 7 दिन तक अगर मेरा फल सेट हुआ तो जम्मू कश्मीर वाला लेके जाएगा। ये केले की फील्ड अगर 5 दिन तक, आज माल कटा, 5 दिन तक फल को गड़बड़ी नहीं हुई तो दिल्ली वाला ले जाएगा, आजादपुर मंडी वाला। जैसे नजदीक आओगे वैसा रेट कम होगा। कॉन्सेप्ट समझना। मेरे माल की क्वालिटी ऐसी है कि आज माल कटा 3 दिन सरवाइव करेगा तो मैक्सिमम हैदराबाद मार्केट में जाएगा, तो लोकल का रेट। जो मैंने राम जी से कल 1-8 घंटे बैठ करके जो बातें करी, उसमें ये निचोड़ समझ में आया, इसलिए मैं पहला बीज रोपण आपको क्या दे रहा हूं। लंबी चाल का केला बनाना है हमें हमारे खेत में तो पैसा ज्यादा आएगा। आपका रेट क्या चल रहा है? कल हमने जो बात करी, आज बड़वानी मध्य प्रदेश की हमारी गाड़ियां जो बन रही है, जो बीके बनाना आज परचेसिंग कर रहे हैं, वो 15 रुपए से 17 रुपए। तेंबुरनी सोलापुर में आज जो एक्सपोर्ट की गाड़ियों की परचेसिंग है वो 20 से 22 रुपए की है। आज वर्तमान 11 अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूं मैं। और यही चीज अगर हम जिक्र करें कि जहीराबाद में आज क्या रेट है? 6 रुपए 7 रुपए 6 रुपए का। फर्क कितना है? वही फार्मिंग को, पौधे की कीमत, कल्टीवेशन की कीमत, लेबर, गोबर खाद, साल भर का पानी, ड्रिप इरिगेशन। तेंबुरनी भी वही है, बड़वानी एमपी में भी वही है, और जहीराबाद में भी वही है। 15 रुपए, 22 रुपए, 7 रुपए फर्क है ना। अगर ये रेट हमें, नमस्ते, अगर ये रेट हमें 10 रुपए के ऊपर मिले तो हम सर्वाइव करेंगे केले में। 7 रुपए मिलेगा तो हम सोचेंगे दूसरी फसल पे जाएं क्या, और जिस दिन 7 के अंदर आया हम फसल छोड़ देंगे, दूसरी फसल लगाएंगे। अभी मुद्दा क्या है? वहां 22 रुपए, वहां 17 रुपए, यहां 7 रुपए क्यों है? लंबी चाल का केला चाहिए। आपके पास व्यापारी, हमारे पास जो गिनती है, मैंने राम जी को बताया कि मैं 50 व्यापारियों की लिस्ट दूंगा आपको। आप 50 को फोन करोगे तो 5 निश्चित आएंगे आपके पास माल लेने के लिए कि बलराम ने अगर नंबर दिया है तो ये क्षेत्र में जाकर हम केला उठाते हैं। निश्चित है 5 व्यापारी आएंगे। बट उन 5 व्यापारियों को जब हम केला माल लोड करके दें तो उनकी जो डिमांड है, जैसे जम्मू कश्मीर में बॉक्स में पैक होके जाता है, 15 किलो का बॉक्स जाता है, क्रेट नहीं जाता, वो बॉक्स उधर ही रह जाता है, तो वो रेट ज्यादा मिलता है उसका। तो ये 7 दिन का क्या मेरा केला ट्रांजिट पीरियड कवर करेगा? मुद्दा ये है। ये मैंने सीखा 2009 और 10 में देसाई ग्रुप के खेत में से। फर्क समझना, किसान का खेत, व्यापारी का खेत, ये कॉर्पोरेट है, ये कंपनी है।
इसने मैनेजर लगाया है, मैनेजर के नीचे 3 मुनीम लगाए हैं। एक्चुअली कैसे फार्मिंग होती है ये मैंने सीखने के बाद मेरे खुद के खेत डिजाइन किए। आज मेरे पास 2200 एकड़ का केला है खुद का। जब आप लोग फ्री हो तो विजिट करूंगा मैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करते हैं अलग अलग जगह पर। तो कंपनी जब फार्मिंग करती है तो कैसे करती है, और किसान जब फार्मिंग करता है तो कैसे करता है, ये सीखने में भी आया और अब मैं सिखा भी रहा हूं इसको। देसाई ग्रुप का 110 एकड़ का प्लॉट था, तो 4 सुपरवाइजर थे 30-30 एकड़ के। इन 4 सुपरवाइजर के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर था। हमारे खेतों में ऐसा कोई है? हम ही सुपरवाइजर, हम ही प्रोजेक्ट मैनेजर, किसी दिन तो वॉल बदलने भी हम ही जाते हैं। ये तो तनख्वाह नहीं है ना, ये तो फ्री है। हम खुद जिस दिन वॉल बदलने जा रहे हैं तो हमें तो तनख्वाह खुद को लेना ही नहीं है, हमारा तो कोई चार्जेस ही नहीं है। देसाई ग्रुप कहाँ बैठा है? मुंबई में अपने ऑफिस में बैठे हैं। खेती कहाँ हो रही है? चंदवाड़ा में, मुंबई से 350 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर। वहां पर सुपरवाइजर की तनख्वाह है 52,000 रुपए, फार्म मैनेजर की, सुपरवाइजर की तनख्वाह है 25,000 रुपए। इसके बाद में प्रोजेक्ट लीड करने वाले अलग अलग पॉकेट आएंगे। इरिगेशन के लिए एक अलग है, डे टू डे लेबर चलाने के लिए एक बंदा अलग है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करने के लिए, ड्रिप से घोल कर देने के लिए एक बंदा अलग है। मतलब उसके नीचे ये जो 4 सुपरवाइजर है, इसके नीचे फिर एक एक को अलग अलग 3-3 आदमी दे रखे। हायरार्की कैसे बनी? हमारे खेतों में तो हम यूज ही नहीं करते। बॉस बैठे हैं घर पे ऑफिस में, इसके नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके नीचे सुपरवाइजर, इसके नीचे काम कराने वाले बंदे, हाँ, इसके नीचे लेबर और फार्मिंग और खेती के तरीके। हमें इस क्या है साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर ही नहीं मिल रहा। हम ये खुद ही सब लोग प्रोजेक्ट कहाँ से- मैनेजर। यहाँ से कहाँ मिलेंगे ये सब लोग? प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए O2 पार्क एक हमारी टीम है, उन्होंने भारत में पहली बार ट्रेनिंग चालू करी है। ये प्रॉब्लम हर व्यक्ति के पास है। आपको 2 महीने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेंगे। इस सत्र में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है पूरे भारत में फार्म मैनेजर के लिए। तो फार्म मैनेजर आपको मिलेगा, अभी उनके 60 दिन का ट्रेनिंग होगा फिर मिलेगा। तो मैं क्या बता रहा था, किसान और कंपनी, तो हमें सोच कैसी बनानी पड़ेगी? क्या हम केला एक बार लगाकर अनेक साल ले सकते हैं? क्या हम केला एक बार लगा करके हर 6 से 8 महीने में ले सकते हैं? क्या हमारा केला पहली हार्वेस्टिंग 25 केजी आया तो दूसरी हार्वेस्टिंग हम 30 केजी और तीसरी हार्वेस्टिंग हम 35 केजी ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम ले सकते हैं। जो 2010 से 2025 तक बलराम किसान का अनुभव है, ये आपके पास आज मिलेगा। इसका आंसर है हाँ, हम ले सकते हैं। अगर ये सोच लेकर बैठेंगे फार्मिंग की कि मुझे जो पौधे लेना है उस कंपनी ने बोला है 5x6 के ऊपर मत लगाओ यार, माल अच्छा नहीं बनेगा, छोड़ दो, मत लगाओ। अगर ये फार्मिंग वाली सोच रखनी है तो हाँ, हम नहीं कर सकते। छोटा सा माइक्रो फर्क है, छोटा सा फर्क है सोच और दृष्टि देखने की और डिजाइन करने की। मैं स्टोरी क्यों समझा रहा हूं? ताकि आप लोग आगे जब मैं फार्मिंग की बात बतलाऊंगा, खेत में क्या करना एक्चुअल में, तो वो मेरा काम मुश्किल से आधे घंटे का है। बट आप सभी केला लगा रहे हैं ना, तो गड़बड़ी क्या है? जो आप केले की खेती करते हुए आ रहे हैं, पहले मुझे उसे साफ करना है। अगर वो पुराना रह गया आपके दिमाग में, तो ये जो देसाई ग्रुप है, ये क्या हम कर रहे हैं ऐसा? हाँ, हमने पौधा लगाया, जिस दिन माल कटा हमारे बच्चे की हाइट 7 फीट की है, 25 पत्ते हैं क्या हमारे खेत में? और जिस दिन माल कट के खत्म हुआ उस दिन तीसरा बच्चा है क्या? ऐसा फार्मिंग है किसी के पास? तो थोड़ा सा हम इसको अपडेट वे में समझें। तो ये जो फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें क्या रिजल्ट है? पनामा विल्ट आना चालू हुई है। इसमें रटून का पैसा बन नहीं रहा है। व्यापारी बोलता है आपका पिलबाग है तो 2 रुपए कम, ऐसा हो रहा है ना। कलर नहीं आता पकने के बाद, ऐसा बोलता है व्यापारी। वो क्यों नहीं आता मैं अभी आपको ग्राफ वाइज समझाऊंगा। बट नहीं आता, ये अटल सत्य है कि हमने सेकंड क्रॉप रखी बनाना की, तो उसमें व्यापारी माल लेके जा रहा है तो दूसरी गाड़ी लेने में बोल रहा है कि नए का रेट 15 है तो
तो रटून का रेट में 12 रुपए ही दे पाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं ना? ऐसे ही होगा सब, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये विधा तो हम कर ही रहे हैं। अब हमें जो करना है मैं उस पर बात करूंगा। ये जब मैंने देखा तो ये फार्म 2010 में जब मैंने विजिट किया ना, 2019 में ये फार्म सरेंडर होकर दूसरे व्यक्ति के पास गया जिनका नाम है लक्ष्मण अहिर, जो सूरत कामरेज के रहने वाले हैं, जो अनदर बड़े व्यापारी हैं। वो डोमेस्टिक में केला बेचते हैं और 400 टन पर डे उनको माल लगता है लक्ष्मण अहिर को। आप जब सूरत विजिट करने जाओ तो मैं मुलाकात करूंगा। 2010 में प्लांटेशन किया, 2019 तक वही प्लांटेशन चला। कितने साल? 9 साल। और माल कितनी बार काटा? 17 हार्वेस्टिंग लिया 9 साल में। हमारे खेतों में 9 साल में कितनी बार केला आता साहब? मैक्सिमम 9 बार। अगर हर साल काट के निकाल कर नया प्लांटेशन करे तो 9 साल नहीं आता साहब। हाँ 9 साल आता ही नहीं, आता ही नहीं। फसल बदलना पड़ती है, बीमारियां बढ़ जाती है। ये खेत आज मौजूद है, इसलिए मैं स्टोरी सुना रहा हूं। आगे और सुनो। 2010 से 2019 तक 17 हार्वेस्टिंग लिया। 2019 से अभी 2025 चल रहा है। लक्ष्मण अहिर के पास है, बड़े व्यापारी हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे, और उन्होंने पूरा रोटावेटर किया, फसल चक्र को हटाया और वापस केला लगा दिया। तो अल्टीमेट तो केला 10 से 25 तक अभी केले में केला ही चल रहा है, दूसरी फसल आई नहीं उस खेत में, और अभी भी वो केला चला रहे हैं। और शायद 2026 में बी किसान ग्रुप के पास ये प्लॉट आएगा। लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं कि बलराम भाई आपको हमारे साथ में फार्मिंग में रहना है। कॉन्सेप्ट क्या है? केला एक बार लगाकर कितनी बार लिया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? समझ में आ रहा है? हेलो, ये मैंने 2009 में विजिट किया कि केला एक बार लगाकर कितने साल तक लें। अभी आप लोगों के पास थोड़ा सा रुक के अंदर जा रहा होगा ना, जल्दी नहीं जाएगा। 15 साल एक ही बार केला लगा के धीरे से अंदर एंट्री करेगा। बट ये रियलिटी है, वर्तमान में वो प्लॉट खड़े हैं। ऐसे कई सारे फील्ड हैं। जब मैंने देखा 2009 में तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा बाप रे बाप, केले में लॉटरी सिस्टम है बहुत बड़ा, लेबर कम, लॉटरी सिस्टम, पैसा एक बार निवेश करना है, खर्चे नहीं करना है। क्या करना है? निवेश, इन्वेस्टमेंट करना है। अभी हम जो ये केले की फील्ड है 7x5, इसमें हम खर्चा कर रहे हैं। एक बार पैसा लगा दिया, गया। हमें रिकवर करने में पसीने आ रहे हैं। व्यापारी को अच्छा माल दिखाऊं, चाय पिलाऊं। पहले व्यापारी आता है तो क्या करते हैं आप लोग? खेत में पहले लाते हो, घर पे ले जाते हो पहले? हमारे यहाँ जो किसान है वो क्या करते हैं, आप तो मुझे पता नहीं क्या करते हैं, अभी आपसे पूछूंगा। व्यापारी आता है, पहले होटल पे ले जाएंगे या घर ले जाएंगे? चाय पानी, कॉफी, लस्सी, सिकंजी, अच्छे से उसका नाम पता पूछना। अच्छा तेरे बेटे को तो मैं जानता हूं, तेरे काका जी का मेरा रिलेशन है, हमारे भी सफेद बाल हो गए तेरे काका के साथ, तो हम पले बड़े हुए हैं। फालतू बातें, केले दिखाने का बाद में लेके जाएंगे। पहले बॉन्डिंग मजबूत कर रहे हैं कि ये रेट अच्छा दे दे मुझे मेरे खेत में जाकर। ये हमारे क्षेत्र में व्यापारी के साथ किसान ऐसा करते हैं। और खेत में लेके जाएंगे, उसको तो बिजनेस करना है। वो पक्का पिछले 25 साल 10 साल से केला काट रहा है, उसको पता है कि आपके पहले कल में जिसके यहाँ गया था उसने भी चाय कॉफी कराई, 8 दिन पहले जिसके यहाँ गया उसने भी पानी पिलाया, चाय कॉफी कराई, तो आप भी वैसे ही कर रहे हो, उसको पता है। जब व्यापारी खेत में जाता है तो क्या करता है? पूरा प्लॉट 10,000 पौधे का है, उसमें 300 झाड़ खराब है। वो उस 300 झाड़ में से उन झाड़ों के पास जाके खड़ा होगा, साहब हल्का भारी दिख रहा है, गई आपकी चाय समोसा काफी खत्म। ऐसा हो रहा है ना? वो क्यों हो रहा है? मैंने राम जी को अभी ये प्लॉट में दिखाया। आप जब ये बीच में ब्रेक होगा तो मैं जो बात बता रहा हूं ये खेत के अंदर जाके देखना। जब खेत के अंदर जाएंगे और एक जगह कहीं में बैठ जाओ, पहला पौधा, फिर उसके बाद का पौधा, फिर उसके बाद का पौधा, नीचे का टखने का मोटा ही देखना। जो थोड़े से अपडेट किसान है ना वो ये ग्राफ लगाते हैं।
जो केले की खेती शुरुआत करते हैं वो तो 5x5 या 5x6 तक रहते हैं, लेकिन जो सीख गए 10-15 साल हो गए केला करते करते, व्यापारी पहचानने लग गए, थोड़ा कॉलर खड़ी करना है कि मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो 7x5। तो इस 7x5 में भी थोड़ा माइनस है और बेहतर हो सकता है। तो क्या माइनस है? जब आप खेत में अंदर जाओगे तो जो तने की मोटाई है, एक पौधे की 20 इंच की है, दूसरे की 18 इंच की है, तीसरे की 17 इंच की है, 15 इंच की है, फिर वापस 20 इंच की है। मोटा पतला पतला फिर मोटा जो तना है। तो इसका असर क्या होता है? जब फ्लावरिंग आती है तो जो कमल आता है, मोटे तने का कमल का डंडा मोटा, जो पतला 15 इंच का तना है वो फ्लावरिंग आते तक 20 का हो गया, जो 20-25 का तना था वो फ्लावरिंग आते तक 35 का हो गया। तो जब फ्लावरिंग आता है उस समय डंडा जिसका तना मोटा है, नीचे का बूंदा क्या बोलते हो आप, स्टेम, जिसका मोटा है उसका फ्लावरिंग आने वाला डंडा मोटा निकलेगा, जिसका स्टेम पतला है उसका फ्लावरिंग आते समय डंडा पतला आएगा। दूसरा, जब हम पौधा लगाते हैं उस समय ट्रे में से पौधा निकालते समय जिस पौधे की मीडिया ढुल गई, निकल गई, खुल गई, लेबर पौधा लगाते हैं, हाँ हमने क्या बोला लेबर को, ट्रे में से अच्छे से पौधा निकालो लगाओ। अब हम हर लेबर के पास खड़े नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे या कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनका रूट का विकास नहीं हुआ, पौधा बढ़ गया, जड़ें उस मीडिया को पकड़ नहीं पाई है। अब वो बच्चे ने पौधा उठाया, मीडिया वहीं रह गया, पौधा हाथ में आ गया, आप पीछे खड़े हो, जल्दी जल्दी उसने मीडिया डाला, पौधा लगाया, दबाया, आगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये कॉमन बात है। उसके लिए क्या सही करेंगे मैं आगे बतलाऊंगा। तो जो ऐसा पौधा उस समय लगाते समय हुआ होगा वो धीमे चलेगा, जिसका बोल नहीं बिखरा, जो सही लग गया वो पौधा सही चलेगा। तो ये जो मोटा पतला है, एक कारण वो है, पौधा लगाते समय जो गड़बड़ हुई, वो जब उस्मान भाई आपके खेत में माल काटने आएंगे उस समय पतला डंडा दिखेगा, उसकी केली पतली दिखेगी, उस समय वो उस्मान भाई बोलेंगे हल्का भारी है। इंपैक्ट कौन सा था? ट्रे में से पौधा निकाला कैसे और लगाया कैसे, उसका रिजल्ट मिलेगा माल बेचते समय। दूसरा रिजल्ट आपका ग्राफ। तीसरा रिजल्ट है आपका जब पौधा जो चल गया उसका पत्ता दूसरे पत्ते से ओवरलैप हो रहा है, जो पतला पत्ता है वो हमेशा पतला रह जाएगा, जो मोटा है वो निकल गया, वो अब मोटा रहेगा। छोटे छोटे इफेक्ट है, मैं आगे बतलाऊंगा। तो जो हल्का भारी लंबी चाल का केला, फार्मिंग में हम निवेश करने की विधा में जाएंगे तो पर्टिकुलर केले की खेती 1 एकड़ में 10 लाख से ज्यादा दे सकती है। हम लोग कमा रहे हैं खर्चा काट के। जब इतना हम पेपर पे पहले उतारेंगे कि मैं फार्मिंग का तरीका क्या डिजाइन करूं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या बनाऊं मेरे खेत की, तो संभव है कि 500 रुपए का लेबर आ रहा है तो हम उसको एडॉप्ट कर लेंगे, वरना हम 300 रुपए वाला लेबर ढूंढेंगे, वो मिलेगा नहीं, हमारे काम पेंडिंग रहेंगे और काम आगे बढ़ेंगे, जिससे समय पर काम होगा नहीं और हमारी फसल में कमजोरी आएगी। ये व्यापारी ने क्या किया, देसाई ग्रुप ने 110 एकड़ का खेत लिया, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, खेत क्या मेहनताना है, ड्रिप कितने की, ग्राफ क्या रखूंगा, कितने साल चलाऊंगा, कैसे पील आएगा, कैसे हार्वेस्टिंग होगी, कहां माल बेचूंगा, मुझे गाइडलाइंस देने वाला कौन है। क्रॉप डॉक्टर उसने रखा साथ में, जैसे हमारे पास फैमिली डॉक्टर है ना परिवार के लिए, कि एक कॉमन हर एक के पास रहता है कि पहला कुछ भी बिगड़ा इनके पास जाएंगे, अगर ज्यादा दिक्कत है तो ये सजेस्ट करेंगे फिर वहां जाएंगे। फैमिली डॉक्टर, ऐसे क्रॉप डॉक्टर। आगे हम बात करेंगे फैमिली फार्मर, वो नेक्स्ट विषय है। क्रॉप डॉक्टर आपको रखना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और जो केले के ऊपर बात करता है उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। केले में जो प्रोडक्ट लगेंगे उसकी जो बात करता है उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करना पड़ेगा। एक और बड़ा कटु सत्य है मार्केट में, केला जो किसान लगाता है स्पष्ट पूरे मार्केट को पता है इस व्यक्ति के पास पैसा है, ये अटल सत्य है। और हर झोला छाप प्लेटिना उठाकर उसके खेत में आएगा डब्बियां बेचने की गाइडलाइन देने के लिए।
क्योंकि पैसा, कॉटन लगाने वाले के पास पैसा नहीं है, मक्का लगाने वाले के पास पैसा नहीं है, सोयाबीन बोने वाले के पास पैसा नहीं है। ये कुदरत पे आश्रित फसलें हैं। जिसने हिम्मत करके केला लगाया, मतलब 30,000 रुपए पहले एकड़ के पौधे के पैसे दे दिए 6 महीने पहले उसने, पैसे वाला आदमी तभी दिया। फिर फर्टिलाइजर, गोबर खाद, 10,000 रुपए एकड़ का गोबर खाद, अभी पौधा लगाया नहीं है। गहरी जुताई, बेड, ड्रीप, 10,000 रुपए इसमें लगा, 10,000 गोबर खाद में लगा, 30,000 रुपए पौधे के लगा दिए। कितना हुआ? 50,000। तो 50,000 जो किसान लगा रहा है, अभी तो पौधा लगाया ही नहीं, 50,000 लग चुके हैं, मतलब वो पैसे वाला है ना। वो तो हमें पता है कि मैंने क्रॉप लोन लिया है या कर्जा लिया है। जो दुकानदार है, उसके पास जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाई बेचने वाले लोग आ रहे हैं, उन्होंने नीचे बच्चे रखे हैं प्लेटिना देकर, एवरेज वाली गाड़ी, बार बार हर खेत में जाना है। और जिसके पास केले का खेत है वहां रुकना है, उसको ये डब्बी, काली डब्बी, लाल डब्बी गाइडलाइन देना है, क्योंकि पैसे वाला वही है, वही खरीदेगा। आप ये बात निश्चित समझ लो। इसका मतलब ये है कि आपको, जिसने केला पकड़ लिया, केले की बुकिंग कर दी, जिसने कल ओटले पर बोल दिया मार्केट में जाकर के कि मेरे खेत में इस साल केला आएगा, उसका नाम चालू, इस आदमी को हम गाइडलाइन दे सकते हैं। तो ऐसे एक प्लेटिना लेकर आने वाले नहीं है, 25 आदमी है, 26 भी हो सकते हैं, जो आपसे बार बार बीच में आकर मिलेंगे। आपको पता नहीं चलेगा। कभी दोपहर में मार्केट में मिल गए, कभी कोई खेत पे आ गया, कहीं चौपाल पर आप चर्चा कर रहे हो, वहां बात हो रही है कि एक्स कंपनी की दवाई बहुत अच्छी, केले में तेरे को काम में आएगी, आगे याद रखना है। अभी तो लगा ही नहीं पौधा। बराबर बात कर रहा हूं। केले का किसान मतलब पैसे वाला। हमको पता है कि मतलब मैंने कैसे पैसे लिए हैं बुकिंग करने के लिए, वो मार्केट को नहीं पता। मार्केट को ये पता है पैसे वाला है। अब जिस दिन पौधा लगेगा उस दिन 1 एकड़ में 10 लेबर। जैसे ही पौधा लग गया उसके बाद ड्रेंचिंग, उसके बाद स्प्रे, पंप लगा करके टोवा देना। अगले 60 दिन तक इतनी सारी दुकानें आपके पास आ जाएगी और आप दुकानों के पास चले जाओगे। जो पहली बार लगाता है उसके बाद 25-26 दुकानों के नाम नंबर आ जाते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, यस और नो? ठीक है। ये प्रोग्रामिंग ना हो, इस ट्रैप में हम ना अटके, इसके लिए पहले कंपनी जैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। हमें खुद को पहले पता होना चाहिए मैंने डालना क्या है। अभी पौधा बुक नहीं किया, बट मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। 1 एकड़ में कितना केला कैसे लगाऊंगा, पानी कैसे दूंगा, कहां से क्या चीज आएगी, पौधा, लेबर, फर्टिलाइजर का ये खर्चा है, इस दिशा में आगे बढ़ूंगा। उसके बीच में फिर 50 आदमी जो समझाने आएंगे ना, आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले से है। अगर वो आदमी इसमें फिट बैठ रहा है तो आप उसको ओके करोगे, ठीक है मैं देखता हूं। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है भैया मैं बात करूंगा आपसे, फिर आप डिसीजन ले सकते हो अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले से है। तो देसाई ग्रुप का जब मैंने फील्ड देखा और आज भी वहां पर केला लगा हुआ है, तो मुझे समझ में आया 2009, 10, 11 में कि केले में इन्वेस्टमेंट एक बार करो और रिटर्न बार बार लो, ऐसी खेती है ये, इस पे सोचा जा सकता है। तो आज मेरे पास 2000 एकड़ से ज्यादा खेती केले की, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में। आंध्रा में मैं कुछ पॉकेट प्लांट कर रहा हूं जहां मैं फार्मिंग करूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो केले को जब सीख लिया, समझ लिया ना, विधा से गुजरा हूं, शायद आप व्यक्ति भी इस दिशा में गुजर रहे होंगे। और हम जो फार्मिंग करते हैं वो छोटे छोटे पहलुओं को देखकर करते हैं। मैं बातचीत जारी रखूं या बोर्ड बलवाए? पहले बातचीत जारी रखते हो, बांध लेंगे ना। तो मैंने ये कहानी इसलिए बतलाई कि मैं जिस विधा से गुजरा हूं शायद आप मित्र भी वैसे चल रहे होंगे। छोटी सी कहानी है बट ये रियलिटी है। तो हम जो आज बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की, एक बार लगाकर रिकरिंग रेवेन्यू कैसे कमाएं और मार्केट को कैसे हम अपने हाथ में लें। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। व्यापारी कोई अगर हमारे खेत में आ गया तो उसने
बिना सौदा किए जाना नहीं चाहिए, इस तरह का मेरा केले का फल का डिजाइन हो। और एक बार अगर वो गाड़ी भर के मेरे खेत से गया तो दूसरी बार उसका फोन आना चाहिए, मेरा फोन नहीं जाएगा उसके पास। ये पॉइंट टारगेट करके हम फार्मिंग करेंगे केले की, जो मैंने छोटी छोटी बातें आपको बतलाई। तो उसके लिए कुछ मूलभूत आप जो खेती कर रहे हैं उसमें बदलाव करना पड़ेंगे, और जो नए मित्र हैं उनको आज जो मैं बता रहा हूं केवल वही करना पड़ेगा, कुछ बदलाव नहीं, कुछ सीखना सिखाना नहीं। आज जो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट वैसे एप्लीकेशन करना है। 2010 से 2025 तक का अनुभव है, आप में से भी कई मित्रों को कई सारा अनुभव होगा, तो आज हम वो दोनों को साझा करेंगे। शायद हो सकता है कि मुझे भी सीखने को मिले, आप जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि और क्या बेहतर हो सकता है। तो झिझकना नहीं है, बातचीत पर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखना है। केले की खेती को शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, पहली बात से शुरू करते हैं कि हम कैसे बेहतर करें। अभी जो हो सकता है कंपैरिजन मैंने दिखा दिया कि फार्मर एक बार लगाकर दूसरी बार ले नहीं पा रहा है, तीसरी बार फसल बदल रहा है। और अगर कॉर्पोरेट वे में हमने केले को समझा तो एक बार लगाकर हम डिसीजन लेंगे कितने साल केले को चलाएं। छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को हमें हमारे पेपर पे उतारना पड़ेगा आज, और घर जाने के बाद जो डिसीजन मेकर नहीं है वो अपने पापा अगर डिसीजन मेकर है तो उनको ये वीडियो दिखाना पड़ेगा। आया है एमपी से, पागलपंती की बातें बता रहा है, पर सुन लो। क्योंकि जो व्यक्ति, जैसे रेड्डी साहब ने किसी को बुलाया होगा कि आओ केला कुछ सीखते हैं, और उनने सोचा होगा रेड्डी साहब का सम्मान करना है तो बच्चे को भेज दिया। अब वो भाई डिसीजन तो ले नहीं पाएगा कि खेत में क्या बदलाव करना है, तो उसको घर जाके पहले पापा को समझाना पड़ेगा ना। कोई पापा आए होंगे पर बच्चा घर में डिसीजन लेता है कि पापा खेती तो मैं ही करूंगा, तो उनको अपने बच्चे को बताना पड़ेगा, तो ये जाकर वीडियो दिखाना है। तो एक चैप्टर फार्मिंग में स्कोप बहुत है। जब मैंने ब्राह्मणपुरी में जाके केला देखा तो अभी मेरे घर में भी बाहर पंखा है तलून में, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ऐसा हम बड़ा बड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट केले की खेती हम कैसे करें, स्टार्ट टू एंड बनाना फार्मिंग। पहले जमीन